So good morning and welcome everyone to today's session on how you can go from being a newbie in the markets to being a seasoned investor using the app Research 360. So today we have two speakers with us. We have Saurav Singhania, who is the project lead of the Research 360 app. And we will also be joined by Mr. Chandan Taparia, who looks after technical and derivatives. He's the VP at Motilal Oswal Financial Services. So today we will be giving you an overview of the Research 360 app and how you can use the unique features of this app to go and become a pro at investing, right? So without further ado, I would request Saurav to take over and we can begin today's session. Saurav, over to you. So, hello everyone. Very good evening. Good morning, guys. Uh, Today, basically, we'll talk about what is Research 360 app, how it will be useful to analyze the market, how to learn about the market. So, first of all, let me share my screen. I will give you a brief of like why we created this app. हमने ऐप क्यों बनाया? What was the reason behind that? So, we'll उसके बारे में बात करते हैं. So if we talk about कि लास्ट 2 साल में अगर देखें कि मार्केट में क्या रहा ओवरऑल, कितने डीमैट्स काउंट रहे, क्या वॉल्यूम रहा. सो आप अगर देखोगे तो FY20 में 2021 में प्री कोरोना जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट थे दैट वाज अराउंड 5.5 CR एंड नाउ वी सी टिल जून कि जून 22 में क्या था, इस बार ऑलमोस्ट क्लोज टू 11 CR. तो लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 50% नहीं 100% देयर वाज इंक्रीज इन डीमैट अकाउंट. सो ये डीमैट अकाउंट जो इंक्रीज हुआ, that means there will be new users in the market, there will be more investment in the market, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 साल में. अगर मैं इस देखूं कि ये जो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, हु आर द ऑडियंस. सो ऑलमोस्ट 80% न्यू यूजर्स जो है वो 25 to 40 ईयर्स के रेंज में है. यानी जो मार्केट हो सकते हैं बिल्कुल न्यू हो. It may be that they were inactive previously, now they're actively more. So with this, जो newcomers, जो new investors आ रहे हैं, what they need some sort of guidance. Okay, they may not be knowing the big brands in the market. They may not be knowing where to invest. Which stock is fundamentally good. Okay. So considering this in mind, we have come up with idea of creating a research app that will be completely free for both, whether it's Motilal user or non-Motilal users. And we have created this app in such a way where user can, and whether it's new users who just want to explore the market, or who just want to see the basic jargon of the market, they need ready-made investment solutions. So that we have provided. And again, for a mature investor, we try to give some advanced tools, scanners, advanced research report, and everything, so that he will basically know the advanced thing or advanced features that he want to do for scanning or taking out the records that are more parameters that are more suitable for his style of investing. So in the research app, we have basically provided almost 10 to 11 features currently, where we, if you see my screen, there are almost 11 features that we have provided in a phase one. So I will explain you each and every section one by one, and then I will walk you through the app also. So first of all, let's talk about market. So in the market section, basically we provided what is happening in the market today, like what is the index position, who is the top gainer, who is the top losers, वो स्टॉक कौन से हैं जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, किस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हुआ है. सो ऑल दिस बेसिक पैरामीटर स्कैनर्स जो रहते हैं मार्केट में कि मार्केट में हो क्या रहा है, कि कौन सा सेक्टर अप है, कौन सा सेक्टर डाउन है. आज अगेन किस स्टॉक में देयर इज अ कॉर्पोरेट एक्शन, यानी किस में डिविडेंड का एक्स डेट है, बोनस का एक्स डेट है, न्यूज क्या है अभी, इट इज इंटरनेशनल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज आर इम्पैक्टिंग द मार्केट. And most importantly, we also have added world indices. तो हम लोगों ने अपने ऐप में, we are the only app where we are providing live world indices, जहाँ पे we are providing कि
आज जो भी यूएस के इंडाइसेस हैं, जैसे डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स है, एसएनपी है, नैस्डैक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग कि उनके लाइव प्राइजेस ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स क्या चल रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द जब इंडिया मार्केट ओपन रहता है उस टाइम पे यूएस मार्केट इज क्लोज, तो वहाँ के जो फ्यूचर प्राइस होते हैं, जो सीएफडी प्राइजेस होते हैं, वो हम लोग लाइव दिखाते हैं कि भाई इस टाइम पे वहाँ का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या चल रहा है। तो दैट रियली हेल्प कि आज इंडिया मार्केट में कैसा डायरेक्शन रहेगा। तो यूएस मार्केट हो गया, फिर यूरोपियन मार्केट वी आर प्रोवाइडिंग हैंग। तो ये सब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं, वी आर प्रोवाइडिंग लाइव प्राइजेस ऑन द ऐप, सो दैट यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर स्टॉक एनालिसिस। तो स्टॉक एनालिसिस में बेसिकली, जैसे अगर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, तो आप क्या देखना चाहोगे? दे विल बी मल्टीपल पैरामीटर्स। आप कंपनी का फाइनेंसियल्स देखोगे, कंपनी का टेक्निकल्स देखोगे, कंपनी के आप देखोगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, की इंडिकेटर्स कैसे हैं। सो नाउ आप कंसीडरिंग एवरीथिंग, देन यू कम अप भी विद इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। सो टू मेक लाइफ मोर इजी फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक, वी आर प्रोवाइड रेटिंग। हम लोग डायरेक्टली आउट ऑफ स्केल ऑफ 100 भी हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कि एक न्यूट्रल जोन में है। जब ओवर वैल्यू की बात करते हैं, मतलब दैट वी आर कंसीडरिंग कि बैकएंड में कि कंपनी का पीई कैसा है, उसके सेक्टर के अकॉर्डिंग उसका पीई कैसा है, कंपनी के पीवी रेशियो क्या चल रहा है, सेल्स क्या चल रहा है, क्वार्टर क्वार्टर रिटर्न्स क्या चल रहा है। सो एवरीथिंग वी आर कंसीडरिंग, देन वी कम अप कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, एक रेंज बताते हैं। देन वी आल्सो प्रोवाइड रेटिंग ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल। तो अब कोई स्टॉक हो सकता है कि आपका फंडामेंटली स्ट्रांग हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन मूवमेंट हो सकता है नहीं हो। लाइक अगर मैं 6 1 ईयर बैक अगर बात करूं आईटीसी का, तो आईटीसी में क्या था, सब चीज अच्छा था, लेकिन देवर नो मूवमेंट, टेक्निकली मोमेंटम स्टॉक नहीं था, तो स्टॉक जनरली एक रेंज में रहता था। सो वी हैव व्हेन जब कुछ स्टॉक को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हम लोग टेक्निकल मोमेंटम है कि नहीं स्टॉक में, वो देखना जरूरी है। टेक्निकल मोमेंटम में से उसका बीटा क्या चल रहा है, उसका मूविंग एवरेज किस रेंज में है, वो 50 डे मूविंग एवरेज रेंज में है कि उसने ब्रेकआउट दिया है मूविंग एवरेज, या वीकली प्राइस ब्रेकआउट है। सो एवरीथिंग वी आर कंसीडरिंग ऑन देन वी आर फाइंडिंग कि टेक्निकली मोमेंटम क्या है। सिमिलरली हर स्टॉक के लिए हम लोग आपको स्वॉट बताते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेस क्या है, कंपनी का कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। सो एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग अपफ्रंट, कि जहां पे आपको बहुत डिटेल में जाके आप बेसिक पैरामीटर देख के एक स्टॉक को बेसिक एनालिसिस कर सकते हो। प्लस जो नॉर्मली डेटा रहता है, जैसे एडवांस फाइनेंशियल्स वी आर प्रोवाइडिंग, कंपनी का पीएल देखना है, बैलेंस शीट देखना है, आपको क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, क्या आया, कंपनी के शेयर होल्डर्स के स्टेक्स आपको देखने हो, उसके कॉर्पोरेट एक्शंस देखने हो, उसमें क्या डील्स हो रहा था, एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडिंग। सो इन शॉर्ट, फॉर स्टॉक्स वी आर प्रोवाइडिंग अ 360 डिग्री एनालिसिस, जहां पे स्टॉक को हर एंगल से, हर तरीके से आप कंपेयर कर, दो स्टॉक को कंपेयर भी कर सकते हो, देन यू कैन सी। नेक्स्ट वी हैव टेक्नो फंडा स्कैनर्स। तो हम लोग ने जो स्कैनर्स होते हैं बेसिकली, तो हम लोग ने 200 प्लस स्कैनर्स दिए हैं, जैसे प्राइस रिलेटेड, जैसे डेली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, ईयरली ब्रेकआउट स्टॉक्स। सिमिलरली आपको अगर मूविंग एवरेज ब्रेकआउट्स देखने हो, कि क्रॉस ओवर देखने की, 50 डे क्रॉसिंग, 200 मूविंग एवरेज, तो इस टाइप के हम लोग ने मूविंग एवरेज हो, आपका आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंगर्स, ठीक है। सिमिलर फंडामेंटल अगर साइड में जाऊं, तो फंडामेंटल में किस स्टॉक का पी 15 के ऊपर है या एक पर्टिकुलर रेंज के नीचे है, किस स्टॉक में एफआई ने स्टेक इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है। तो ऑल दिस पैरामीटर्स वी आर प्रोवाइडिंग इन स्कैनर फॉर्मेट, जहाँ पे आप जाके इंडिविजुअली स्कैन कर सकते हो। प्लस वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मल्टीपल स्कैनर्स, जहाँ पे आप दो स्कैन्स को डायरेक्टली क्लब कर लो, देन यू कैन सी कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो अप टू 10, आप 10 डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स को क्लब करके देन यू कैन चेक आउट आउटपुट, कि आउटपुट क्या है। सिमिलरली F1 एनालिटिक्स, तो F1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो F1 के जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो बेस्ट के जितने भी आप एप्लीकेशन देखोगे मार्केट में जो फ्री अवेलेबल है, उसमें वो सब मिसिंग है। मिसिंग जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन मिल जाता है, लेकिन व्हाट वर द ग्रिक्स, आईवी क्या चल रहा स्टॉक का, डेल्टा कैसा है, क्योंकि जब हम लोग आज ऑप्शन में स्ट्राइक पर सेलेक्ट करते हैं, वी सी द डेल्टा क्या है स्टॉक का, थीटा क्या चल रहा है। So we have provided the Greeks of the all the for all stocks for expiries. We are providing कि उनका ओवाई चार्ट कैसा है, बिल्डअप कहाँ चल रहा है, किस टाइप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिल्डअप है कॉल में, या पुट में सबसे ज्यादा बिल्डअप कहाँ है, एक स्टॉक का मैक्स पेन क्या चल रहा है,
ऑब्वियसली जब एक्सपायरी होती है तो मैक्स पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी हैव टू लुक। तो मैक्स पेन क्या चल रहा है, उसका पुट कॉल रेशियो क्या है, ठीक है, आज ओवरऑल स्टॉक में किस स्टॉक बैंड में है या बैंड में जा रहा है या बैंड से बाहर निकल रहा है, तो मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट क्या है उसकी, रोल ओवर कैसा हो रहा है स्टॉक्स में। सो ऑल दिस इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए रहता है, एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड अ बंडल इन द एफएनओ एनालिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव एस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, तो जो भी बिग सुपरस्टार्स होते हैं जैसे जिसके पोर्टफोलियो वी लाइक टू फॉलो, लाइक लेट राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी, सुनील सिंघानिया, देन वी हैव डॉली खन्ना, पूरन जी, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल का बात करूं तो एसबीआई एज ए ग्रुप, अगर मैं एसबीआई एज ए ग्रुप बात करूं यानी एसबीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओके। सो सो ये सारे पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने क्लब करके एक ऑलमोस्ट 230 इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हम लोग ने इस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो दिया, जहां पे आप देख सकते हैं कि वो इन्वेस्टर किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कितना परसेंट उसका होल्डिंग है उस स्टॉक के अंदर। उसने अब ये जो आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे होता है, सो क्वार्टर ना क्वार्टर किस स्टॉक में उसका स्टेक इंक्रीज किया है या स्टॉक में डिक्रीज किया है। सो विल टॉक मोर व्हेन वी गो टू द ऐप। मैं एक दो आपको दिखाऊंगा अभी कि जैसे रिसेंटली अभी किस सुपरस्टार ने किस स्टॉक में अपना स्टेक इंक्रीज या डिक्रीज किया। नेक्स्ट वी हैव रिजल्ट एनालिसिस। तो रिजल्ट एनालिसिस बेसिकली जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो जनरली हम लोग जो बाकी जगह देखते हैं क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिजल्ट देख लिया कि हाँ रिलायंस का कल रिजल्ट आया, 15% रेवेन्यू अप था। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि भाई निफ्टी का क्या चल रहा है, अगर मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ओवरऑल मार्केट के ऊपर, तो मेरी ये रहेगा कि ओवरऑल इंडेक्स का कैसा रिजल्ट है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि एज ए इंडेक्स लेवल जो उसके 50 स्टॉक्स है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर लेवल, हम ये बताते हैं कि ओवरऑल उस इंडेक्स के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। तो वो हम लोग कंपेयर करके एज ए इंडेक्स व्यू या सेक्टर व्यू देते हैं जो विल हेल्प टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट है एमओ रेडी एंड एमओ रिसर्च। तो बेसिकली जितने भी एमएसएल के प्रोडक्ट्स हैं जो रेडीमेड सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग कैश मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंट्राडे कॉल्स देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म से देखें तो हम लोग लॉन्ग टर्म हम लोग 250 स्टॉक पे हम लोग रिसर्च देते हैं, जिसको हम लोग कॉल्स देते हैं, उनके लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स भी देते हैं कि उनपे क्या करंट फाइनेंशियल्स क्या चल रहा है। तो 8 to 10 पेज का पीडीएफ होता है। तो जो ये लॉन्ग टर्म कॉल है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या डिटेल एनालिसिस करके किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक बाई करना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या जो न्यू एज इन्वेस्टर, उनको जो डीप में जाना है, नॉलेज गेन करना है, दे कैन रीड दिस रिपोर्ट, सी व्हाट लॉजिक वी आर यूजिंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस स्टॉक इज बुलिश, उस स्टॉक का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडिंग। सिमिलरली अगर कोई न्यू एज इन्वेस्टर्स है जिसको बेसिकली डायरेक्टली स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना या उनको इजी सोल्यूशन चाहिए, तो दे कैन ऑफर एमओ बास्केट, जहाँ पे हम लोग क्यूरेटेड थीम बेस्ड बास्केट देते हैं, मे बी जैसे दिवाली बास्केट हो गया या फिर मान लीजिए टाटा बास्केट हो गया। ऐसे करके हम लोग एक बकेट बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल स्टॉक्स उसके अगेंस्ट उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं, ओके। सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन आप ले सकते हो। सिमिलरली आईपी है जो एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल एडवाइजर्स जो आपके आपके फंड को मार्केट में लगाते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज आईपी प्रोडक्ट। सो दिस टाइप तेजी बंदी अगेन सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। सो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं हम लोग जिसको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए या रिटर्न बेटर चाहिए एफडीज के मुकाबले, सो यू कैन सेलेक्ट इट्स ऑल्टरनेट टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आईपीओ एनालिसिस। तो जो भी अपकमिंग पास्ट आईपीओज है क्या रहे, किस पे कितना सब्सक्राइब, वो आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, उस कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, पीयर्स क्या है। तो एवरीथिंग यू कैन एनालाइज इन आईपीओ सेक्शन। वॉच लिस्ट अगेन आपके जो भी स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं तो यू कैन ऐड इन योर वॉच लिस्ट। देन एक वॉच लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि उस स्टॉक का मूवमेंट कैसा हो रहा है, उस स्टॉक के अंदर न्यूज क्या आ रहा है, उस स्टॉक के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन क्या हो रहा है, उस स्टॉक के अंदर स्क्रीनर्स में कैसा मूवमेंट है कि जो जो कौन कौन से स्क्रीनर्स के अंदर वो स्टॉक डेली आ रहा है। देन वी हैव एजुकेशनल वीडियोस। तो हम लोग ने काफी सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें अगर कोई बिगनर्स है तो बिगनर्स के अकॉर्डिंग वी हैव एडेड वीडियो, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर एक्सपर्ट को मान लीजिए जानना हो, टेक्निकल चार्ट देखना हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एडवांस चार्ट भी डाला है। तो जो भी फंडामेंटल चार्टिस्ट होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो इस प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भी कर सकते हैं जो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। सो आई थिंक वी विल डायरेक्टली
move to demo. So let me share my mobile screen. ओके, सो आई होप आप लोगों ने सबने लॉग इन कर लिया होगा. सो जो मोतिला के क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली वन स्टेप लॉग इन है उनके लिए. बेसिकली उनको अपना मोबाइल या डायरेक्टली आईडी पासवर्ड से, जो क्लाइंट आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं. एंड देन हु आर नॉट अ मोतिला Oswala client, there are two step of verification. You have to give the mobile number, you have to give email ID also. So both he have to give, then he can register. अच्छा, ये ऐप में as I mentioned, these are completely free. Okay, and we are not charging anything, and this can be accessed by both whether it's Motiva's or client or not. So there is no as such this features wise difference that we have kept as of now. Going forward, again there will be some difference between the Motiva's client and the non-Motiva's client in terms of features that we are giving, in terms of fee we are charging, but completely right now it's completely free for everybody. This है लैंडिंग पेज. तो लैंडिंग पेज हम लोगों ने सिंपल रखा है बेसिकली कि यू आर गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ कि मार्केट में क्या चल रहा है. तो आप देखोगे जो निफ्टी क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी क्या है, एसजीएस निफ्टी, डाउ जोन्स. सो एज ए मेंशन कि दोनों चीज लाइव है इसके अंदर. तो एसजीएस निफ्टी, डाउ जोन्स कैन ट्रैक कि मार्केट में क्या चल रहा है. एफआईडीए एक्टिविटी की लास्ट 5 डेज में एफआई मार्केट में कैसा इन्वेस्टमेंट किया है, कि उन्होंने इन्वेस्ट एक स्टेक फंड मार्केट में डाला है या निकाला है. क्लिक ऑन मोर तो आपको डिटेल भी मिल जाएगा. ये जो एक्सेस मेनू है बेसिकली, यहाँ पे जितने भी लोग इंपॉर्टेंट 9 मेनूज मैंने आपको जो बताया है वो सब लिस्टेड है. मार्केट, स्क्रीनर्स, एफएनओ, वर्ल्ड इंडेक्सेस, एमओडवाइस, आईपीओ, एज इन्वेस्टर रिजल्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स. सो एवरीथिंग अपफ्रंट वी आर प्रोवाइडेड. आप मोर पे क्लिक करके डिटेल में भी देख सकते हो बाकी मेन्यूज जो भी है. नाउ दिस मार्केट सेंटिमेंट. सो ये वन ऑफ द मोस्ट important you can say feature that we are providing in the app कि मार्केट सेंटिमेंट कैसा है. तो जैसे हम लोग इस सेंटिमेंट निकालने के लिए ओवरऑल मार्केट में जो मूवमेंट चल रहा है स्टॉक का, उनके मूविंग एवरेज, उनके अलग टेक्निकल पैरामीटर्स, एज ए मार्केट होल वी स्टडी एट द बैक एंड. वी हैव एन ऑल एआई बेस्ड एल्गोरिथम जो मार्केट का सेंटिमेंट रीड करता है. तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म अगर देखूँ तो लॉन्ग टर्म में अभी जो मार्केट सिनेरियो दिख रहा है उसमें ऑलमोस्ट 43% बियरिश है, 35% बुलिश है. दैट मीन कि जो बियरिश है वो लिटिल हैवी है. इसका मतलब नहीं कि मार्केट हम डाउन साइड ही है, लेकिन दे लिटिल डाउन साइड प्रेशर. Generally you can see the long term view आपको monthly या 2 weeks 3 weeks ले देखना हो तो there also आप seeing little bit bearish side का sentiment है, लेकिन ऐसा नहीं है कि bullish बहुत ज्यादा है. Generally intraday. तो ये जो आप intraday वाला है तो again चंदन will explain you इस डिटेल में बताएंगे. बट अगेन इंट्राडे इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट that our data we got a feedback also from our users also that's work really well when it comes to expiry. तो expiry में जो भी ट्रेड करते हैं they check the sentiment what is there in the market and according they can take a call. So it can be reversal, it can be further downside, it can be further upside. So that you can see from here like where we should go. then market चार्ट जो मैंने बताया कि टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स है, स्टॉक 52 वीक हाई, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक. सबका डिटेल पे इनसाइड है. रिसर्च रिपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग. टॉप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो आके जिन वाला का इसका मैं डिटेल में बताऊंगा. न्यूज, एजुकेशन वीडियोस तो मैंने बताया आपको कि अगर कोई किसी को लर्न करना है मार्केट के बारे में या बेसिक जागरण जानना हो मार्केट का, देन यू कैन गो टू एजुकेशन सेक्शन. यू कैन क्लिक ऑन मोर, देन यू कैन सी द डिटेल, यू कैन सर्च आल्सो. So everything we are provided over here. So let's go to the each section one by one. So if you go to the market, so market section में आप जाते हो तो मार्केट का मैंने बताया कि मार्केट का पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ देते हैं कि मार्केट में इंडेक्स का पोजीशन क्या चल रहा है, वर्ल्ड इंडेक्सेस कैसा चल रहा है. ठीक है. यू सी द स्पार्क चार्ट आल्सो. यहाँ जो निफ्टी का चार्ट है यू सीइंग अ डॉटेड लाइन, दिस है प्रीवियस डे क्लोज. तो आपको ये भी पता चलता है कि एक दिन में निफ्टी का मूवमेंट कैसा था. कि आप देखोगे तो मार्केट डाउन खुला था, गैप डाउन खुला था या ऑलमोस्ट डाउन साइड खुला था, देन वेंट अप. तो ये जो यूएसडी का क्लोज है इसको क्रॉस किया, देन अगेन स्टार्टेड मूविंग डाउन, देन वी क्लोज एट 80% डाउन, 80 पॉइंट डाउन. सो आपको ये अपफ्रंट भी दिखता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसा चल रहा है. ओके. टॉप गेनर, टॉप लूजर्स मैंने बताया. इसमें भी हम लोगों ने यहीं पे अपफ्रंट दिया है कि भाई डे का तो ठीक है, वीक में देखूं, वीकली में देखूं रिटर्न सबसे ज्यादा स्टॉक में किस में ज्यादा मूवमेंट आया है.
अगर मैं देखना चाहूँ 52 वीक के पीरियड में सबसे ज्यादा स्टॉक की स्टॉक तो मैजडॉक है, यूको बैंक है, जिस स्टॉक में ऑलमोस्ट 150% के आसपास मूवमेंट है, इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली आप आवरली देख सकते हो, तो जो होता है ना कि कोई स्टॉक में लास्ट मूवमेंट अगर अचानक से बड़ा मूवमेंट आया है तो ऑल्सो यू कैन ट्रैक, जैसे जेके पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो स्पार्क चार्ट में लास्ट में भी 13-15 मिनट्स पहले देयर वाज अ अपसाइड मूवमेंट। तो इसमें ये सब स्टॉक में जो लास्ट मोमेंट आप 250 से 330 के बीच में अगर देखते हो अचानक से स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी क्या है कि मंडे इन द नेक्स्ट या नेक्स्ट सेशन में वो मोमेंटम कंटिन्यू होके गैप अप ओपन हो सकता है। तो इस टाइप के जो लास्ट मोमेंट जो ट्रेड्स हो रहे हैं या लास्ट मोमेंट जो गेनर्स है, या रियली हेल्प्स कि नेक्स्ट डे किसमें गैप अप हो सकता है या किसमें गैप डाउन हो सकता है। देन हाई वॉल्यूम गेनर्स, हाई वॉल्यूम लूजर्स। तो अगले से अपने जनरली अगर कैश मार्केट में अपने देखते हैं गेनर्स क्या है, अगर मैं फ्यूचर्स ऑप्शन की बात करूँ तो वहां पे हम लोग गेनर के साथ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। कैश मार्केट में ऑब्वियसली कि जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग वॉल्यूम चेक करना चाहिए। ओके, तो अगर किस स्टॉक में वॉल्यूम हुआ है एंड देयर इज पॉजिटिव अपसाइड, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस एक मूवमेंट अपसाइड का हो सकता है, स्ट्रांगली अप है वो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लूजर्स देखूं तो अगर कोई स्टॉक में प्राइस डाउन है एंड अलॉन्ग विद वॉल्यूम, तो वी कैन से कि इसमें एक डाउनसाइड का प्रेशर भी है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस यू कैन डू ऑन योर ओन। आप कंटिन्यूस एक ट्रैक करके देख सकते हो कि किस टाइप का प्रेशर हो रहा है मार्केट के अंदर, नॉट ओनली कि प्राइस मूवमेंट क्या है। देन वी आर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, तो हम लोग हर स्टॉक के अगेंस्ट एक सेक्टर और इंडस्ट्री डिफाइन किया है। देन वी एट आर एंड वी आर कैलकुलेटिंग कि उस एज ए सेक्टर के अंदर मूवमेंट क्या हुआ है। जैसे कंसल्टेंसी सर्विस देखूं तो देवा 3% आप हुआ था। आप मोर पे क्लिक करोगे आपको डिटेल मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देन न्यूज, देन बॉटम स्क्रीनर्स, हम लोगों ने इवेंट्स डाले हैं कि रिजल्ट्स किसी स्टॉक में रिजल्ट है, डिविडेंड किस में है, बोनस क्या है। देन क्लिक ऑन डिफरेंट डेट्स। तो ये जितना भी हमें मैंने वो भी बताया सबका डिटेल पेज है। लाइक फॉर गेनर मार्केट मूवर्स आप डायरेक्टली मूवर्स पेज में जा सकते हो। आप देखो बॉटम में देयर इज ए ब्लैक पैच, देयर इज ए फ्लोटिंग मेनू वी से, इफ यू क्लिक ऑन दैट आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, गेनर्स, लूजर्स, 52 वीक, हाई लो, मोस्ट एक्टिव, ओनली बायर सेलर। ठीक है, यू कैन स्क्रोली डॉट, हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रोल भी दिया है जहाँ पे आप आपको और डिटेल देखना हो, मूव डाउन करना हो या इनके बाकी पैरामीटर्स देखने हो, तो एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडेड ऑप्शन। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर भी डाला है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एनएससी 500 के लिए दे रहे हैं। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आपको निफ्टी 50 के लिए देखना हो, बैंक निफ्टी को देखना हो, या बीएससी इंडेक्स या सेक्टर अकॉर्डिंग देखना हो, गेनर्स लूजर्स या कितने ही मेंबर्स दैट यू कैन ट्रैक। सिमिलरली इंडाइसेस, तो आपको जो मेजर इंडाइसेस है एनएससी बीएससी के यू कैन सी। अगेन जैसे मेंशन कि स्क्रॉल करके आप अलग पैरामीटर भी देख सकते हो। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखूं इंडेक्स का, तो देखो एंड निफ्टी पीएसयू में दे रहे 51% अपसाइड एंड एफएमसीजी में 19%। तो ऑब्वियसली वी नो कि लास्ट 6 मंथ में और मे बी 4-5 मंथ्स में पीएसयू बैंक में एक बड़ा मूवमेंट आया है अपसाइड का। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टॉक 6 मंथ में देखो 55% अप है ये सेक्टर। लेकिन अगर मैं डाउन साइड देखूं तो इन निफ्टी आईटी 21% डाउन, निफ्टी मीडिया 19% डाउन, स्मॉल कैप 19% डाउन। सो ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे अगर देखोगे लकी आप चेक कर सकते हो बेसिकली कि कैसा मूवमेंट रहा है। तो यहाँ से ऑब्वियसली दो अगेन एनालिसिस होता है कि अगर कोई चीज डाउन है तो क्या फर्दर डाउन आएगा, क्या उसका बॉटम आउट हो गया है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस सेक्टर में बेट लेना चाहिए। तो यही सेम चीज और एनालिसिस ऑल्सो डू कि वीसी की रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, on basis of that we only suggest या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। so everything that our data that we use to our analysis we are providing upfront in the app। then we have world indices, जो मैंने बताया आपको जो मेजर इंडाइसेस है, you can see all the major indices we are providing upfront। so आप प्राइस चेंज, हाई लो, एवरीथिंग you track। सेक्टर एनालिसिस मैंने बताया कि आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आज कौन सा सेक्टर अप है। ठीक है, आप जैसे कोल देवर 1.2% अब ओवरऑल मार्केट तो डाउन ही था, लेकिन कोल सेक्टर में देवर इंक्रीज। आप क्लिक करके देख सकते हो कि कोल इंडिया अप बाय 1.36%। सिमिलरली आपको इंडस्ट्री लेवल पे देखना हो तो अगेन इंडस्ट्री लेवल पे आप देख सकते हो कि कंसल्टेंसी सर्विस सबसे ज्यादा अप था। तो दैट यू कैन से कि कौन सा स्टॉक अप है, तो दैट यू कैन ऑब्वियसली कंपेयर फ्रॉम हियर।
न्यूज एंड अनाउंसमेंट, तो आपको अगर देखना हो कि मार्केट क्या न्यूज चल रहा है या एनएससी का अनाउंसमेंट क्या है, तो बॉटम सब अनाउंसमेंट सेलेक्ट करके यू कैन गो टू द अनाउंसमेंट ऑल्सो। एफआईडी एक्टिविटी मैंने बताया कि आपको देखना हो कि मार्केट में एफआई या डीआई का मूवमेंट कैसा है, तो पैसा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं। तो क्लिक ऑन डिटेल दैट यू कैन सी कि डे वाइज कैसा रहा है, ठीक है, कि लास्ट मे बी 3 मंथ्स एवरी डे, डे बाय डे कैसा उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो 19 को दे बार पॉजिटिव, 20 देगा नेगेटिव। और ये चीज आप मेरे को अगर मंथली व्यू देखना हो, you can select from drop down monthly, you can select and see month over month उन लोगों का मार्केट में कैसा रहा है। तो नवंबर मंथ दे वर नेट पॉजिटिव फॉर अराउंड 22,000 crore पॉजिटिव अमाउंट। फॉर द लास्ट 2 मंथ अगेन दे वर नेट नेगेटिव। सिमिलरली कॉर्पोरेट एक्शन, किस स्टॉक में आज डिविडेंड है, बोनस है, जैसे 24 वी हैव इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1 रुपी इन विप्रो, एंजल वन 3 रुपीज। सिमिलर वे, तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं, किस स्टॉक में बोनस है, किस स्टॉक में आपका राइट स्प्लिट होने वाला है, तो ये सब यू कैन चेक एंड यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्रैक डील्स, किस स्टॉक में बल्क डील हो रहा है, किस स्टॉक में ब्लॉक डील हो रहा है, किस स्टॉक में इनसाइडर के प्रमोटर्स के डील चल रहे हैं, दैट यू कैन ट्रैक जस्ट। या सॉरी, सो डील्स के अंदर बेसिकली किस स्टॉक में बड़े प्रमोटर्स के या एम्प्लॉइज के जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं या उनके जो भी बाय सेल हो रहे हैं, दैट यू कैन ट्रैक फ्रॉम इनसाइडर डील्स। So these are more or less our market. Similarly, you can go to the search at the top and you can search any stock. So let's go to Reliance. So if you go to the Reliance stock, then यहाँ पे हमने जब मैंने बताया आपको कि हर स्टॉक के अगेंस्ट हम लोग बताते हैं उसकी रेटिंग क्या चल रही है, तो क्वालिटी कैसी है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, टेक्निकली अभी इसको स्टॉक में कैसा मोमेंटम है। So if you look at the Reliance quality, तो obviously we know कि fundamentally very strong company in the market today. वैल्यूएशन देखें, इट्स बेसिकली मिड रेंज, ना ही ये ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है, इट्स ऑलमोस्ट एट पार, और यू कैन से मोर और लेस इन न्यूट्रल जोन। टेक्निकली भी अगर लास्ट में 3 मंथ से देखूं तो रिलायंस का मूवमेंट एक लिमिटेड रेंज के अंदर चल रहा है। सो अगेन टेक्निकली इस बिलीनियर न्यूट्रल रेंज, बहुत ज्यादा इसमें अपसाइड या डाउनसाइड कोई मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है, कंसीडर द पास्ट 3 मंथ 4 मंथ मूवमेंट। इफ यू गो डाउन वी हैव प्रोवाइडेड चार्ट, यू कैन क्लिक ऑन एक्सपैंड। तो जो मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भी मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द बार टू चेंज द पोर्ट्रेट व्यू। सो कंप्लीट आपका जो भी ट्रेनिंग व्यू सारे इंडिकेटर स्टडीज है, यू कैन सेलेक्ट, यू कैन व्हाटएवर यू वांट टू सेलेक्ट, एडवांस डिक्लाइन देखना हो, यू वांट टू सी आरएसआई, सो एवरीथिंग यू कैन डू इट। सो आपको जो भी चार्ट में एनालिसिस करना हो ओवर द डे, 1 मिनट 5 मिनट्स, आपको कैंडल का पैटर्न चेंज करना हो, so everything you can do from the over here। देन स्टॉक्स के अंदर अगर ये स्टॉक के नाम में कुछ कॉल दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म में कॉल है या लॉन्ग टर्म में कुछ कॉल है, तो अगेन दैट यू कैन ट्रैक, तो यहाँ एमओएसएल एडवाइस करके आपको मिल जाएगा की स्टैट्स, स्टॉक के रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, मतलब ओवर द 1 ईयर सीएजीआर क्या है, 5 ईयर सीएजीआर क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है ओवर द 5 ईयर और 3 ईयर्स। देन इनके पीयर स्टॉक क्या क्या है, तो रिलायंस का बीपीसीएल, हिंडो पेट्रो। तो अगेन रिलायंस इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, again he is into telecom, he is into petrochemicals, so he is into now details also। so again ये define करना कि एक particular company से compare करना is really difficult। so basically what we have categorized basically into refinery and petro product, you can see the industry over here, so that's why comparing it against them। शेयर होल्डिंग की कंपनी के प्रोमोटर्स के स्टेक कितने हैं, एफआई से कितने हैं, डीआई का कितने हैं। सो अगेन दिस टाइप ऑफ होल्डिंग मैटर्स। अगर किसी कंपनी में 80% या 90% प्रोमोटर स्टेक है, दैट इज ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, सो द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैन बी डिफरेंट फॉर दोज कंपनी। सिमिलरली आप क्लिक ऑन एफएनओ, तो इसका एफएनओ का डिटेल सेक्शन अलग है। ओवर ये सीधा इसका रिलायंस स्टॉक के लिए क्या चल रहा है पैरामीटर्स, तो उसका प्राइजेस देख सकते हो, कुछ पर्टिकुलर एक्सपायरी का ओपन टेस्ट कैसा है, रोल ओवर कितना परसेंटेज चल रहा है, बिल्डअप कैसा चल रहा है। अगेन हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डअप 5 मिनट 50 मिनट का बिल्डअप भी दिया है।
तो 5 मिनट के ओपन इंटरेस्ट और मूवमेंट कैसा था, 50 मिनट, हर 50 मिनट गैप में कैसा मूवमेंट हो रहा है। तो अगेन एक होता है ना स्टॉक में बड़े मूवमेंट आने से पहले या कुछ आपको बेसिक इंडिकेशन चाहिए, तो दिस टाइप ऑफ इंडिकेशन यू कैन सी इट फ्रॉम हियर कि अगेन ये बिल्डअप के बेसिस पे 5 मिनट 15 मिनट के इंटरवल में कैसा चल रहा है। तो चार्ट देखने से अच्छा डायरेक्टली यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। देन आपको ये देखना होगा कि स्टॉक का मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से हैं ऑप्शंस में। तो वॉल्यूम के बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन सा कॉल का स्ट्राइक सबसे ज्यादा ओपन बिल्डअप है या लॉन्ग है। तो अगेन ऑप्शन चेंज तो वी आर प्रोवाइडिंग, बट अगेन आपको अगर बेसिक ओवरऑल एक लिस्ट में देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फाइनेंशियल तो स्टॉक का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना हो तो अगेन एक टैबलर फॉर्मेट नहीं देखिए, हम ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया है कि एक जनरली जस्ट आप देख सकते हो वेव कैसा है स्टॉक में, एक अपसाइड ट्रेंड है और देयर इज अप डाउन अप, वेव चल रहा है। तो अब मैं अगर देखूं ईपीएस ग्रोथ देखूं तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है रिलायंस का। सिमिलरली अगर मैं रेवेन्यू साइड में देखूं तो नेट इनकम आप देखोगे कंटिन्यूस अपसाइड में है, क्वार्टर ईयर एंड ईयर। रेवेन्यू साइड में भी सेम सिमिलरली। अब मैं क्वार्टर रिजल्ट में देखूं तो यू कैन सी कि क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा चल रहा है इसका। तो अभी जो कल रिजल्ट है यू कैन सी कि प्रीवियस जो क्वार्टर था उससे रेवेन्यू देयर इज लिटिल डिप ऑफ 5%। अगर मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट में देखूं तो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है, यहाँ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लेकिन रेवेन्यू इज लिटिल डाउन। तो अगेन जो भी मूवमेंट आपने को वी कैन सी ऑन अ मंडे, बट दिस इज व्हाट रिजल्ट इज सेइंग। आप मोर पे भी क्लिक करके अगेन यू कैन सी ये जो टैबलेट फॉर्मेट का जो डेटा होता है जो टेक्निकली वी सी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम डेप्रिसिएशन एवरीथिंग दैट यू कैन ट्रैक बाय गोइंग इनसाइड। तो बैलेंस शीट सब चीज कम दिया है। अगेन टेक्निकल तो स्टॉक में टेक्निकली मोमेंटम कैसा है, परफॉर्मेंस रिटर्न्स कैसे हैं, मूविंग एवरेज कैसा है, पाइवट पॉइंट्स क्या क्या है, टेक्निकल्स कैसे हैं, बीटा क्या है स्टॉक का, तो एवरीथिंग अपफ्रंट। सिमिलरली मैंने बोला शॉर्ट एनालिस्ट बताया स्टॉक का, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, क्या वीकनेस पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी क्या है। सो एवरीथिंग यू कैन ट्रैक। पीयर कंपैरिजन ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो भी उसके रिलेटेड कंपनीज है उनका आप कंपेयर कर सकते हो, उनका नेट प्रॉफिट कैसा है, रिटर्न्स कैसा है, पीई कैसा है, बुक वैल्यू कैसा है। तो एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी हैव गिवन। आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये चीज आप अदर पैरामीटर्स पे भी कंपेयर कर सकते हो, रिटर्न के बेसिस पे, हाई लो के बेसिस पे, क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे। So we have got n number of things where you compare do two stock within the same sectors. Then news and announcement जो स्टॉक के अंदर है, स्टॉक के अंदर जो स्क्रीनर्स है, जो मैंने बताया जितने भी स्टॉक के जितने भी स्क्रीनर्स के अंदर ये स्टॉक आएगा दैट यू कैन ट्रैक फ्रॉम द इंडिविजुअल सेक्शन। तो फंडामेंटल जो जो स्क्रीनर्स के अंदर ये स्टॉक कौन को उसके पैरामीटर में पॉजिटिव में आ रहा है, कौन को स्टॉक में नेगेटिव में आ रहा है। तो बस जस्ट लुकिंग एट द कलर आल्सो यू कैन सी। अगर टेक्निकल देखूं टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर तो मैक्सिमम देखो मैक्सिमम साइड में ये इट वाज इन रेड जोन। तो निफ्टी को आउट परफॉर्म मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है ये, मैक्सिमम हर पैरामीटर में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ओपन एट हाई हुआ था। तो एक स्टॉक का मोमेंटम भी आपको देखना हो तो आप इस एक जस्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ काउंट्स यू कैन सी कि स्टॉक में क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन ओके, डील्स जो भी हो रहे सब देख सकते हो। यू कैन कंपेयर, आपको अगर टॉप पे कंपेयर बटन है, यहाँ पे आपको कंपेयर करना हो दो स्टॉक को। अगेन यू कैन कंपेयर बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पीई के बेसिस पे, पीबी के बेसिस पे, एक कंप्लीट आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको एक कंपैरिजन बन जाएगा। एंड यू कैन शेयर ऑल्सो, आप क्लिक करो, अब आपको जहाँ व्हाट्सएप पे शेयर करना है, जिससे भी शेयर करना है, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर रिलेटिव, किसी के साथ भी आप कंपेयर करके सेंड कर सकते हो कि अगर दो स्टॉक के बीच में अगर डिसीजन लेना हो तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच यू कैन टेक अ डिसीजन। देन वी हैव स्क्रीनर्स जो मैंने बताया कि जो मार्केट में हम लोग 200 प्लस स्क्रीनर्स दिए हैं, तो प्राइस रिलेटेड डेली वीक स्क्रीनर्स, वीकली स्क्रीनर्स, सिमिलरली स्टडीज इंडिकेटिव टेक्निकल्स के अंदर आपको मूविंग एवरेज, आरएसआई ऐसे करके मिल जाएंगे। देन वॉल्यूम डिलीवरी, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग अपफ्रंट। तो लेट्स टेक मूविंग एवरेज में जाता हूँ मैं। तो 200 SMA क्रॉस क्रॉस अंडर 200 SMA। तो इस टाइप का कोई भी आपको देखना हो या गोल्डन क्रॉसओवर देखना हो कि 20 क्रॉस 50 को किया हो या 50 क्रॉस 200 को किस किस स्टॉक में क्रॉस ओवर हो रहा है, दैट यू कैन ट्रैक। सिमिलरली अगर आपको ये भी देखना हो कि मेरे को मल्टीपल स्काई करना है, टॉप पे आप देखोगे तो देयर इज अ प्लस साइन, ओके, यू कैन क्लिक ऑन दैट।
फ्रॉम वहां से आप अपने मल्टीपल स्कैन्स को क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ तो कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना मल्टी स्कैनर्स, देन इनसाइड दैट जाके आपको एक मल्टीपल स्टॉक स्कैनर्स को टिक मार्क करके देन यू कैन क्लब इट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैक्सिमम में तो ब्लैंक आ रहा है। Let's see। ठीक है, पेज 3 के अंदर भी सी, तो मैं अगर स्कैन्स देखूं तो मैंने यहाँ 4-5 नॉर्मल स्कैन्स डेली के प्राइस के बेसिस पे मैंने डाला था। जिस 4 के बेसिस में देखूं तो ये स्टॉक स्कैन के अंदर आ रहा है। तो दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू कैन डू कि आप अपने हिसाब से लाइक मूविंग एवरेज आरएसआई को क्लब कर दिया, प्लस आपको अगर फंडामेंटल पैरामीटर कुछ ऐड करना हो तो वो भी आपने ऐड कर दिया। तो इस बेसिस पे जो भी एडवांस एनालिसिस करना हो, जो हम लोग अगर मैं चार्ट पे करता हूँ, मैं एक स्टॉक का देखता हूँ, तो सेम जो आप चार्ट पे करते हो सेम यू कैन डू इट ओवर, प्लस आपने फंडामेंटल भी ऐड करके स्कैन करके आप यू कैन फिल्टर आउट कि कौन सा स्टॉक जो आपके रडार में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर दैट यू आर लुकिंग। नेक्स्ट वी हैव एस न्यूज़ पोर्टफोलियो। सो मैंने जैसे बोला कि आपको बिग सुपरस्टार के अगर पोर्टफोलियो देखने हो, राकेश जिनवाला, रमेश दमानी, आशीष कचोलिया, सुनील सिंघानिया, या बिग इंस्टीट्यूशनल का देखना हो, एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, या एफआईज के पोर्टफोलियो देखना हो, सो यू कैन सी ओवर हियर। सो लेट्स गो टू राकेश जिनवाला पोर्टफोलियो। तो आप इस साइड जाओगे तो कितने स्टॉक के अंदर राकेश जिनवाला ने इन्वेस्ट किया हुआ था, अभी उसका वैल्यू क्या है। अगेन ये पोर्टफोलियो वैसे चेंज होगा। तो अभी जो लास्ट होल्डिंग हम लोग के पास है, तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट सबसे ज्यादा किया हुआ था, ऑलमोस्ट 34% टेक्सटाइल, अप्रेजल एंड एक्सेसरीज, बेसिकली टाइटन में इन्होंने सबका मेजर स्टेक है। अगर मैं स्टॉक वाइज देखूं तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा स्टेक एपटेक के अंदर है। सो इनसाइड इज, अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, देयर इज हिस्ट्री बटन ऑन ऑन द राइट हैंड साइड, आप क्लिक करके यू कैन सी कि इसके अंदर कौन कौन से इन्वेस्टर है। जैसे यहाँ पे बेसिकली रेयर इंटरप्राइजेज और रेखा झुंझुनवाला के नाम पे स्टेक है। ओके, सो आप यहाँ बेसिकली देख सकते हो कि किसने इनके फैमिली के अंदर, इनके कंपनी के अंदर किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, दैट यू कैन ट्रैक। अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग में की चेंजेस है, तो मैं भी देख सकता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस स्टॉक के अंदर उनका स्टेक इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर बेसिकली ये, तो अभी इस पोजीशन के अंदर ये है कि काफी सफलिंग चल रहा है बिटवीन राकेश जुनेवाला, रेखे जुनेवाला, रेन एंटरप्राइजेस। तो अभी कदरी के मैक्सिमम मूवमेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे दिख रहा हो कि इसमें स्टेक इंक्रीज हुआ है, बट देयर इज जस्ट अ ट्रांसफर। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग एनी एनालिसिस, जस्ट सी द चार्ट। तो मैंने जैसे बताया ना, यहाँ पे आप शो हिस्ट्री देखो, यहाँ चेक कर लो यहाँ से कि कैसा प्रीवियस कैसा था, किसने इन्वेस्ट इनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे एपटेक के अंदर, तो अभी राकेश जुनवाला जो भी स्टेक है वो रेखा जुनवाला के अंदर ट्रांसफर हो गया है, या रे एंटरप्राइज का ट्रांसफर हो रहा है। देयर इज शिफ्टिंग इज हैपनिंग विद इन दिस पोर्टफोलियो। सो व्हेनेवर यू आर सीइंग एनी चेंजेस, जस्ट सी द हिस्ट्री आल्सो। सिमिलरली आप एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, किसी का भी आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। देन वी हैव एमओ एडवाइस। सो मैंने जो बताया कि हम लोग जो भी कॉल्स देते हैं कैश मार्केट पे, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर भी हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरडे पे हम लोग कॉल्स देते हैं, ठीक है। अगेंस्ट आपने रिसर्च रिपोर्ट भी रहता है, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड देन कैन सी कि हम लोग किस बेसिस पे, जैसे अभी वरुण बिवरेज, इंडसइंड बैंक, तो हम लोग किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, टारगेट क्या है, टारगेट परसेंटेज क्या है हम लोग का, ठीक है। एवरीथिंग यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम है। अगर आपको F1 रेटिंग में देखना हो, ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना हो, एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड करना हो, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए यहाँ पे कॉल्स देते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन ले सकते हो। सिमिलरली बास्केट जो मैंने बताया कि जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट है, ठीक है, या सेक्टर बेसिस पे है, तो पावर बैक फाइनेंशियल से फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड है, ब्लू चिप कंपनी, ठीक है, दिवाली पिक जो हमने दिवाली के टाइम पे इन्वेस्ट किया था, उनके रिटर्न्स आप चेक कर सकते हो। यू कैन क्लिक एंड सी कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन दिस टाइप ऑफ रेडीमेड सॉल्यूशन वी आर प्रोवाइडिंग अपफ्रंट, ठीक है। सिमिलरली आईपी जो आरआई प्रोडक्ट्स है, वो भी हम लोग यहाँ पे अपफ्रंट आपको देते हैं कि आप इस टाइप के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यू कैन क्लिक ऑन इन्वेस्ट बटन, यू विल बी डायरेक्ट टू आवर ट्रेडिंग ऐप। तो हम लोग का जो इन्वेस्टर ऐप है वहाँ पे आप डायरेक्ट हो जाते हो। अगर आप क्लाइंट नहीं हो तो यू कैन ओपन अ डीमैट। तो यहाँ पे अगेन आपको रिटर्न मिल जाएंगे कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है उसके अंदर। सिमिलर तेजी मंदी जो अगर हम लोग का फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है, हम लोग के पावर किया हुआ है, तो देयर ऑल्सो कि आपके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप देखोगे 30,000 तक कम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है।
एंड दिस इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट जहाँ पे मंथली फी आपको लगता है एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। सिमिलरली रिसर्च रिपोर्ट, तो जितने भी रिसर्च हम लोग के इंस्टीट्यूशनल टीम पब्लिश करती है, वेदर इज एज ए मार्केट यानी ओवरऑल करेंसी मार्केट है, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस हम लोग का क्या है, कंपनी लेवल पे जो अगेन मैंने बताया आपको, सेक्टर लेवल पे देखना हो कि और एक सेक्टर लेवल में हम लोग के रिपोर्ट्स निकलते हैं और वो एक इकोनॉमिक बेसिस पे निकलते हैं, जनरल एज इकोनॉमी एज लार्ज या फिर इन्फ्लेशन के बेसिस पे। तो एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग अपफ्रंट ओवर हियर, जहाँ पे आप जाके डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। नॉलेज जंप टू द एफ, जो मैंने अब बताया कि एफ के अंदर हम लोगों ने काफी ऐसे पैरामीटर डाले हैं दैट इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रेडिंग। सो अपफ्रंट हम लोगों ने एडवांस डिक्लाइन बताया कि भाई ओवरऑल एफ मार्केट के अंदर अब कितने स्टॉक अप है या डाउन है, अगर अप है तो कितने परसेंट तक अप है, कितने डाउन साइड में कितने डाउन है। तो मैं अगर फ्राइडे लास्ट देखूँ तो 0 to 2% ऑलमोस्ट 116 स्टॉक, ऑलमोस्ट 50% मार्केट 0 to 2% मार्केट डाउन था। एंड ओवरऑल मैं देखूँ आउट ऑफ 200 स्टॉक्स, ओके, सो ऑलमोस्ट 25% स्टॉक पॉजिटिव थे और 75% स्टॉक डाउन थे। सिमिलरली निफ्टी के लिए आप देख सकते हो, यू कैन सी फॉर बैंक निफ्टी में भी क्या कितने स्टॉक अप है कितने डाउन है। तो बैंक निफ्टी अप था, स्टॉक देखो तो 7 स्टॉक अप थे, 5 स्टॉक वर डाउन। डिटेल ऑफ चंदन विल अगेन चंदन विल एक्सप्लेन बिल्डअप। तो आपको देखना होगा कि लॉन्ग कितने कितने स्टॉक है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यू कैन ट्रैक टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, किस अपने स्टॉक के अंदर सबसे गेन कितना हुआ है, ओपन से कितना इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली यू कैन सी ओआई गेनर ओआई लूजर्स, देन ऑप्शंस के अंदर किस स्टॉक के अंदर किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है या ओआई डिक्रीज हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, दैट यू कैन ट्रैक। सेक्टर ऑल्सो कि ओवरऑल जो अपने स्टॉक्स है उसमें सेक्टर वाइज क्या हो रहा है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल डाउन, एफएमसीजी डाउन, कितने, तो ये सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन मोर, यू कैन सी इन डिटेल मार्केट बाय पोजीशन लिमिट। तो आप देखोगे तो जैसे पीवीआर का लास्ट अभी मार्केट पोजीशन 111 है, यानी ये स्टॉक और अभी से 95% अबव है, इस गॉन द बैन। सो मंडे ये बैन के अंदर रहेगा, ठीक है। सेल जो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे है लेकिन अगेन इज नॉट इन द बैन लिस्ट। तो ये बेसिकली एनालिसिस जो लास्ट 1 आवर के जो मार्केट पोजीशन लिमिट रहते हैं उनके बेसिस पे भी आप अपना ऑप्शन स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई किसी स्टॉक के अंदर मार्केट प्राइस 95 के ऊपर होता है वो बैन के अंदर जाता है और उसका आईवी इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब आईवी इंक्रीज होता है तो आईवी बेस्ड स्ट्रेटजी आल्सो यू कैन टेक इट, कि अगर आईवी ज्यादा है तो यू कैन हैव योर आईवी बेस्ड स्ट्रेटजी की उसके अंदर क्या पोजीशन लेना चाहिए, ओके, डेल्टा हेजिंग यू कैन डू इट ओवर देयर। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू। कॉर्पोरेट एक्शन देखना हो मेरे को कि स्टॉक में क्या जो मैं बताया कि कैश मार्केट में क्लियर हो गया, ठीक है, एफएनओ मार्केट में किस स्टॉक के अंदर रिजल्ट्स है, तो अगेंस्ट रिजल्ट के बेसिस पे यू कैन सी कि आप मेरे को स्ट्रेटजी क्या बनानी है। सिमिलरली जो मैंने सबका डिटेल पे भी अपने आपने दिया है, तो मूवर्स हीट मैप में भी आपको देखना होगा कि प्राइस के बेसिस पे आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, उसके बेसिस आप चेक कर सकते हो। और बेसिस वॉल्यूम यू कैन सी, सिमिलरली यू कैन फिल्टर इट आउट। तो आपको एक्सपायरी चेंज करके या निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए देखना हो या डायरेक्टली कुछ सेक्टर के लिए देखना हो, बेसिस पे बिल्डअप देखने हो, दैट यू कैन ट्रैक। सिमिलरली सेक्टर एनालिसिस, तो आप ये भी सकते हो किस सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, दैट यू कैन ट्रैक। ऑप्शन चेन जो मैंने बताया कि हर स्टॉक के हर एक्सपायरी के लिए हम लोगों ने ऑप्शन चेन डिफाइन किया है। और हम लोग इफ क्लिक ऑन द ग्रिक टेबल वी हैव ग्रिक्स ऑल्सो, तो स्टॉक का आईवी क्या है, डेल्टा का है, थीटा क्या है, वेगा क्या है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रिक्स रियली हेल्प कि आपको स्ट्राइक प्राइस क्या सेलेक्ट करना है। हम लोग ओपन टेस्ट पे डिफाइन कर रहे हैं कि स्टॉक में इस टाइप का जो ओपन टेस्ट कितना है, डॉट ऑल्सो वी आर डिफाइनिंग, ठीक है। पुट कॉल रेशियो, तो आप पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हो कि इसका पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, मैक्स पिन क्या चल रहा है। तो अगर फ्यूचर प्राइस 18,055 है, अभी इसका मैक्स पिन चल रहा है 18,100। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू। यू कैन सी द ओआई चार्ट ऑल्सो कि सबसे ज्यादा बिल्डअप किस टाइप का जो चल रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन क्लिक ऑल स्ट्राइक प्राइस, यू कैन सी होल कंप्लीट चार्ट ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा अभी हम देखो तो ऑब्वियसली कि एट द मनी के आसपास ही सबसे ज्यादा बिल्डअप लग रहा है, मे बी 18,100 के आसपास सबसे ज्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू। सिमिलरली चेंज सबसे ज्यादा किस टाइप का इसमें ओआई चेंज हुआ है प्रीवियस डे, दैट ऑल्सो यू कैन सी।
रोल ओवर रिपोर्ट आपको देखना होगा कि स्टॉक में, तो जो मंथली अपना जैसे एक्सपायरी आने लगेगा तो रोल ओवर रिपोर्ट के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रोल ओवर कहाँ हो रहा है। मार्केट पोजिशन मैंने बताया, रिजल्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन द ऐप। ठीक है, अगेन लास्ट यू कैन सी द वॉच लिस्ट। तो आप वॉच लिस्ट में जाके जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है यू कैन ऐड, और वहाँ कैन सी कि उसके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से स्टॉक कौन कौन से स्क्रीनर्स में आ रहा है उस सारे स्टॉक में न्यूज़ क्या है, स्टॉक में कॉम्पिटिशन क्या है। तो इंस्टेड ऑफ जनरल आप आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है या रडार में जो भी स्टॉक है, you can create your portfolio and then you can track their movement, news, everything through watch list. So that was a main important feature in the app. Now, so I will ask Chandan to give you a brief कि इसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं। तो मैंने आपको जो बेसिक लेवल पे ऐप लेवल पे जो भी था मैंने आपको बताया। Now we'll listen to we have a word from Chandan also, जो बेसिकली आपको टेक्निकली कैसे ऐप को यूज करना ही will guide you. So Chandan, are you there? So Saurabh, Chandan is joining in a couple of minutes, so he'll be with Okay. us shortly. So guys, Chandan is joining. So अगर आपके कुछ क्वेरी है इस पार्ट तक के लिए, so you can put in the chat. कुछ चैट में ऑलरेडी आए हुए, I will try to answer it also. So Saurabh, I guess Chandan has also joined us now. Okay. So meanwhile, guys, in case you have any questions, you can put it in the Q&A box or in the chat box, and then we will surely answer all those. Yes, Saurabh. So Chandan, I've explained the basic जो app के basic features I've explained. So now you are waiting कि ये features के basis पे आप क्या analysis करते हो और आप कैसे इतने बढ़िया calls suggest करते हो। So over to you कि we can if you get a insight कि app में आप as a चंदन तपड़िया आप क्या देखते हो, that we want to understand from this session. Yeah. So thank you, Saurabh. And it's great to hear all about Research 360, which you explained now. And really, this is one of the powerful tool we have. Day-to-day basis, I use it very frequently. Even most of the time in my mobile app, I continue to be with Research 360. So first of all, I'll share what are the tricks and thumb rule you need to apply. And one of my favorite is heat map and market sentiment. So if we go to the market sentiment, Saurabh, in market sentiment, I'll go to the intraday part. So if you look at the intraday part of the market sentiment, here the index view and setup you can easily identify. अब market sentiment में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है market में bullish कितना है 14%, bearish कितना है 43%, neutral कितना है 43%. That means only 14% chance that market is bullish. So if you are just opening this market sentiment indicator 4 to 5 times in a day, you will be knowing कि market का रुख क्या होना चाहिए. आप देखोगे कि फ्राइडे को ये मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर में बेरिश जो था वो 30% से स्टार्ट हुआ और 43% तक पहुंच गया. When you have neutral plus bearish is more than 75%, that means you need to apply the negative bias of the market. When neutral and positive both are more than 75%, you need to apply the positive side of the market. So if you look at now, 86% sentiment is negative to range bound as per the trend indicator of the market sentiment. So this is the first thing you need to keep in mind. क्योंकि सबसे पहले सबको यही चाहिए कि निफ्टी क्या लग रहा है. So market sentiment में आप जाओगे and if you go in the intraday, you will come to know कि क्या लग रहा है. Now if I go to the short term, अब मैं short term में जाता हूँ. So Saurabh will show the short term market sentiment. So यहाँ पे आप देखोगे, so bullish, bearish, neutral, all are in same range. So I can say one third is the sentiment, but in that slightly bearish. So if I know this, I can use this sentiment to initiate the strategy. कि market है एक broader range में रहेगा और bullish भी नहीं है, bearish भी नहीं है, neutral भी नहीं है, but intraday में negative था, इसके लिए हल्का सा negative bias ज्यादा है. So if you combine the intraday and short term, you can plan your strategy in the weekly expiry also कि मुझे 3 से 5 दिन का क्या व्यू लेना है.
So this is the one and important aspect I see in market sentiment part. After that, I'll request Saurabh to go to the market top gainers. Yeah. So here, first you show in 1 hour. Guys, I'll give you how to get the BTST. So here I have the list of all the stock which were gaining in last 1 hour. So if you check it here, one name is JK Paper, right? So if you go to the JK Paper, if you use any applications, or here also you can see the chart. In JK Paper, clearly it has given a consolidation breakout of last few days. So even if you open the chart, easily you get the clarity about the daily, weekly chart that breakout ho raha hai. So this is how you'll get help to find out the trading setup. Now, if I go to the 1 day, मैं 1 day जाता हूँ, तो 1 day में I have name, let's say Engineers India. So पहला trade है जैसा Soba Developers. So if you are getting here, that means something is there. Volumes भी है, breakout भी हुआ होगा. So if you notice it easily, you can capture the swing or momentum of the stock. Engineering India, look at the Engineers India. I think one of the best stock in this market. चार्ट देखिए आप इंजीनियर्स इंडिया का, वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, एंड कल लगभग इसमें 2 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है. सो दिस इज द प्रोसेस which will help you which chart to see. Like one more look at the Mazgaon को देखोगे, कल अच्छा चला है बट थोड़ा सेटअप नेगेटिव है, अवॉइड करो, राइट? So based on this technique, we have find out, let's say Engineering India. Based on this technique, we have find out the Nifty trading range, कि आपको setup क्या रखना है, bias क्या रखना है, right? Okay. Now let me go to the next way of working. So Saurabh, can you go into the future and options, and then let's just a minute. I want you to go to the this one where we have heat map. Let's say I'll go to the future and options. Just a minute. Yeah, future and options. I'm going to the heat map, and before heat map, go to the overview. Go to the overview. So guys, what happens in overview? We have all FNO, Nifty 50 and Bank Nifty. There are 192 stocks and 3 indices, including Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty mainly. So उन 195 या 100 जो भी है उसमें से क्या हो रहा है. Now I'll go to the let's say Bank Nifty. Bank Nifty में click करो. So there are 12 stocks in Bank Nifty. 7 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव है, राइट? नाउ अगेन इफ आई look at here in your market sentiment, if I take back to the market sentiment first again, आप देखो निफ्टी में क्या लग रहा है, न्यूट्रल, बट बैंक निफ्टी क्या है, बाई. निफ्टी आईटी क्या है, न्यूट्रल. So that means bank nifty is more bullish. Now if I again take you to the yes, advanced decline, click on the bank nifty. 7s are positive, 5 are negative. Now if I take you to the nifty part, go to the nifty and check it here. So you are easily understanding कि nifty ज्यादा pressure में है. 50 स्टॉक में से 37 are down, 12 are up, right? While in bank nifty we are having 50-50 chance of bullish and bearish. But in Nifty, you have only 33% chances of bullish and 67% stocks are going down. So this will also help you to get the feel which sector, which index is comparatively doing well. So कल के हिसाब से ये क्लियर था कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है. आपको तेजी करनी है बैंक निफ्टी के साथ करो, मंदी करनी है निफ्टी के साथ करो. Okay. Now go to the heat map part again. Heat map में you can see price and OI combination. कहाँ पे long built up बना है, कहाँ पे short built up बना है. Then you can go to the sector analysis. Okay.
नाउ नोटिस हियर, यूटिलिटी सेक्टर इज समथिंग जहां पे कुछ बड़ा है, 7 यूटिलिटी स्टॉक्स है, 7 के 7 पॉजिटिव है, चेक इट हियर, गेल, गुजरात गैस, आईजीएल, एनटीपीसी, यहाँ पे कुछ है. सो इफ यू यूज इट, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किधर फोकस करना है, कौन से सेक्टर पे फोकस करना है. नाउ लेट्स से you have negative view in the market, negative bias on the market, go to metal and mining, or go to just a minute, consumer durables, go to end and consumer durables. Havells negative, Voltas negative, Crompton negative, ये सारे negative. So don't try to pick these stocks on buying side, only play for buying put or selling side. Okay, so now to next I'll take you to the option chain. Option chain में जाइए, right? So option chain में I'll click on the Greeks, right? I can see the live delta, gamma, theta, vega, rho. Mainly we are showing here delta, theta, vega, gamma. Rho का requirement रहता ही नहीं है. So we understand कि किस strike का कितना delta है. जैसे 18,050 की कॉल का delta है 0.5, तो हमें समझ में आ जाएगा जितना निफ्टी चलेगा उससे आधा चलेगा. यदि मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड ने या मैंने 18,300 का कॉल लिया, इफ आई गो डाउन 18,300, उसका डेल्टा है 0.26, यानी कि 40 पॉइंट निफ्टी चलेगा तब जाके यहाँ पे 10 रुपए का मूवमेंट आ सकता है, बट उसमें भी थीटा का प्रॉब्लम रहेगा. सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ इफ आई टेक यू टू द OI चार्ट, द नेक्स्ट पार्ट, एंड हियर वी हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड मैक्स पेन एंड PCR. मैक्स पेन 18,100 है, मेनली टू वर्क्स ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, just to tell ki what is the sentiment and setup as per the writer's point of view. Then go to the MWPL, market wide position limited. कौन सा स्टॉक FNO के बेन में आ सकता है, कौन सा निकल सकता है. So these are the couple of tricks you should apply in your day-to-day life to make the journey smoother. Then we have screener. Screeners में जाओगे, right? If you go to the screeners, you can use anything. If you want study based screener, let's say I'm going to the relative strength index, I'll go to RSI. In RSI, I look at RSI crossovers over 70. मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो ओवरबोट है, मतलब जहां पे स्ट्रेंथ है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि JSL एक ऐसा नाम है जो पॉजिटिव है, जिंदाल स्टील, यानी स्ट्रेंथ है, भले ही ओवरबोट हो बट मोमेंटम कंटिन्यू. सो एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट कि काफी लोग है वो वॉलेटिलिटी ट्रेड करते हैं, बोलिंजर पे फोकस करते हैं. सो बोलिंजर डाला, प्राइस कोस्ट क्रॉसओवर ऑफ बोलिंजर बैंड. सो कोफोर्ज, SDFC, मैंने कल यहाँ से SDFC पिक किया. गो टू SDFC का चार्ट ओपन करो. या जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे यू विल गेट द क्लियरिटी कि दिस इज द ओनली काउंटर व्हिच इज शोइंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट. क्लियर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, recently took support at the lower band of the trading range. So this is what you can see. Then again इसमें जाके FNO के सेटअप में भी जा सकते हो. यहाँ पे SDFC पे क्लिक करो, इसके FNO पे सेटअप पे चला जाओगे, नीचे FNO. यस, OI कितना है, रोल ओवर कितना हो रहा है, आज क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, कितना बिल्टअप हो रहा है, मोस्ट एक्टिव कॉल पुट कितना है. आप मोस्ट एक्टिव में ओपन इंटरेस्ट वाइज करो. PCR 0.81 है, 0.81 का PCR है. तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है. और इसके टेक्निकल सेटअप पे जाओ, 66% मार्क्स मिले इसको, वेरी पॉजिटिव. मंथली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, 3 मंथ्स पॉजिटिव, ईयरली पॉजिटिव. मूविंग एवरेज है, EMA यूज कर लो, EMA शोज क्लियरली पॉजिटिव. सो एंड 2687 का पाइवट पॉइंट है, 2715 पे बंद हुआ है. यू कैन यूज पाइवट पॉइंट एज ए सपोर्ट ऑल्सो. काफी लोगों को चार्ट नहीं देखना पाता है, तो इन लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं. काफी लोगों को ATR चाहिए, काफी लोगों को ADX चाहिए. ADX 15 पे है, मतलब ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ है. 61 का RSI है, MACD 7.5 का है, 1 का बीटा है इसका, 1 का बीटा है, मतलब निफ्टी के साथ साथ चलता है. सो मार्केट में किसी को चाहिए ऐसा स्टॉक जो मार्केट निफ्टी के साथ चले, बड़ा नहीं गिरे, थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस में दे, यू कैन गो विद द SDFC. सो एक अलग ही तरह का स्टडी आपको मिलेगा. एंड आई थिंक जितना ढूंढोगे उतना कम पड़ेगा.
Just have the basic understanding and use this. I think nothing can be better than Research 360. Enjoy it and have a great time. Over to you, Saurabh. थैंक यू चंदन. सो जितने बार आपसे सुनते हैं कुछ नया ऑब्वियसली लर्निंग मेरे लिए भी रहता है. एंड आपके सेशंस में ऑब्वियसली आई विल आल्सो ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर इन द अपकमिंग रिलीजेस. सो गाइस, वन मोर few updates from my side. So we are coming up with the web also. So जल्दी इसका वेब प्लेटफॉर्म भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं. एंड विल ऐड अदर एसेट क्लास ऑल्सो. तो अगर म्यूचुअल फंड है, कमोडिटी है, ठीक है, so this all things also will add in coming months. So obviously there are lots of things in the pipeline. This not the things that only will come. So prices भी अभी जैसे prices इसके अंदर up 3 to 5 minutes delayed है जो honestly अभी ऐसे क्या. So we also work company की इसको almost live price कर दे. So there are certain things in the pipeline also. So obviously we with your feedback, with your suggestions, हम लोग we are continuously upgrading the app. ठीक है. So my request will be कि आप ऐप को एक्सप्लोर करो, गिव योर फीडबैक ऑल्सो. हम लोगों ने यहाँ पे टॉप राइट में एक फीडबैक सेक्शन भी बनाया है जहाँ से यू कैन गिव योर फीडबैक. यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो, और यू कैन रेट अस ऑन द प्ले स्टोर, ऐप स्टोर. आपको ऐप जस्ट कैसा लगा या ऐप का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करते हो. यू कैन गिव अस रेटिंग ऑन द प्ले स्टोर. वहाँ पे भी आप अदर्स को भी गाइड कर सकते हो कि दिस फीचर यू लाइक मोस्ट. सो एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स कि इफ यू लाइक विथ फीचर यू लाइक. और जो हम लोग मैंने बताया कि बहुत सारे जो न्यू एज इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें या उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि हम लोग जो बास्केट्स है, जो हम लोग आईपी है, जो हम लोग कॉल्स जो दे रहे हैं, तो दे कैन एक्सप्लोर. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हरिजिंदर. So Saurabh, we have a couple of questions in the Q&A Yeah. box. So I think we can take them first. And there's just one person who's also raised their hand, but we'll take it after after you guys answer the questions. So Manish Soni, there is a stock price earning in this, but there is no sector price earning. So Manish, I'm not getting the exact point you're asking, but if you're talking about the earnings or you're talking about the results, then as I mentioned कि आप result analysis में जाके stock का जो भी earning है that you can track. So if you go to sector analysis, result analysis, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आपको overall निफ्टी का एक सेंटीमेंट देखना हो कि अगर मैं बात करूँ अभी निफ्टी के अंदर 11 स्टॉक में रिजल्ट आया है, अभी क्लब इट तो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17% है ऑलमोस्ट. ठीक है. सो ये 11 स्टॉक का ओवरऑल, इसमें 8 स्टॉक्स में ऐसे हैं जिनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और 2 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है. सो दैट प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. So this top sentiment we are providing. आप यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज जाओगे, so again there also you can see कि किस ओवरऑल जो इंडस्ट्री जितने भी उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसमें इंडस्ट्री वाइज किस इंडस्ट्री का ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कितने डिक्रीज हुए. और अगेन क्योंकि अभी रिजल्ट स्टार्ट हुआ है, सो अगेन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट टू रेलेवेंट. लेट्स वेट फॉर 15 डेज और जहाँ पे रिजल्ट जैसे अभी मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर परसेंटेज टर्म में 325% इंक्रीज है, लेकिन एक ही स्टॉक का रिजल्ट आया है. सो इज नॉट डिफाइनिंग द होल सेक्टर एज होल. तो ये एनालिसिस हम लोग रिजल्ट एनालिसिस में दे रहे हैं. Okay, I hope if this is a query, then you can stack it from here. What is the frequency of technical analysis? तो technical analysis जो screeners का अगर आप बात कर रहे हो तो technical screeners हम लोग डेली का है हम लोग का ऑलमोस्ट रियल टाइम में. तो जो भी प्राइस और वॉल्यूम रिलेटेड है दैट आर ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ. तो आज का जो भी पैरामीटर में आ रहा है, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है या उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो वो ऑलमोस्ट आज का ही है. बिकॉज द प्राइस 3 to 5 में डिलेड है तो यू कैन से कि 5 to 10 मिनट्स हियर एंड देयर ही है, लेकिन वो आज की है, ईओडी नहीं है. तो जो भी प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरी ये सब ड्यूरिंग द डे के हैं. और जो भी फंडामेंटल्स है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल पैरामीटर्स तो डेली हो नहीं सकते हैं, तो इट मे बी क्वार्टरली, इट मे बी मंथली. तो एज एंड व्हेन उसके अंदर कुछ भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस के अपडेट्स हो रहे हैं. Manish Soni, again sector P is not visible. So sector level पे हम लोग के नहीं है, अभी डेटा नहीं दिया. We trying to figure it out. So again sector level पे भी we'll provide कि पर्टिकुलर सेक्टर का ओवरऑल पीई क्या है.
लेकिन अगर इंडेक्स लेवल आप देखना चाहो तो इंडेक्स के अंदर आपको फार्मा का देखना हो तो दैट अगेन विल वर्क इट आउट एंड प्रोवाइड टू यू. So do you have mentioned success rate against your MO advice? So सक्सेस रेट नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों ने ऑफर नहीं दिया, लेकिन अगर MO एडवाइस में आप जाओगे समल, सो वहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कॉल्स का एक देखोगे तो क्लोज कॉल्स भी देख सकते हो. ओके, सो आपको ये देखना हो कि लास्ट जितने भी हम लोग कॉल्स है जो हम लोगों ने क्लोज किए हैं तो उसका क्लोज कैसा हो रहा है. ठीक है, तो वो आप वहां से भी बेसिक आइडिया ले सकते हो कि कितने स्टॉक में कॉल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है. स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कितना हम लोगों ने रखा है, कि अगर हम लोग कॉल दिया तो हम लोग भी ट्राई करते हैं, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो अर्ली एग्जिट करवा दें. सो दैट यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. फाइनेंशियल वैल्यूएशन गुड स्टॉक, हाउ टू फाइंड गुड हेल्दी बुलिश कंपनी. सो ये जो मैंने बताया कि अगर आपको जो हम लोगों ने स्कैनर्स दिया है, ठीक है, देयर यू हैव टू कंबाइन. ओके, तो ये हम लोग कंबाइन वेरियस फंडामेंटल एंड टेक्निकल पैरामीटर. आप मान लीजिए कल ये कि स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के ज्यादा होना चाहिए. अगेन जो चंदन ने बताया कि आरएसआई ओवरबॉट जोन, अंडरबॉट जोन, प्लस आप मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉसओवर यू कैन कंबाइन बॉलिंगर बैंड. ठीक है, तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स को यू कैन, तो हम लोगों ने काफी सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी दिए हैं निशान. सो आप क्लब करके यू कैन अगेन सी द आउटपुट कि कौन सा स्टॉक उस पैरामीटर्स पे आ रहा है, एंड देन यू कैन सी द आउटपुट. Samal, again, what is the criteria for market sentiment? So market sentiment जैसे मैं बताया कि we are considering various technical parameters. So अगर निफ्टी 50 की बात करूं, so we are analyzing as a nifty whole, we are analyzing for all the 50 stocks. Okay, स्टॉक वाइज क्या सेंटीमेंट बन रहा है. तो ऐसा नहीं कि निफ्टी इंडेक्स देखा उसके बेसिस पे हम लोग नहीं, हम लोग 50 स्टॉक्स भी देखते हैं. आप देखोगे तो मार्केट का एज ए मार्केट होल है. दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी स्टॉक. हम लोग एवरी स्टॉक वी सी कि उस स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है, उसके बेसिस पे उस इंडेक्स का सेंटीमेंट क्या बन रहा है. अब सेंटीमेंट में बात करूं तो अगेन एज ए मेंशन कि ये प्राइस रिलेटेड चीजें हैं. फंडामेंटल पैरामीटर्स वी आर नॉट कंसीडरिंग, वी आर कंसीडरिंग ओनली टेक्निकल पैरामीटर्स. तो ब्रेकआउट, गैप अप, गैप डाउन, देन वी आर सीइंग इन वॉल्यूम कैसा है, फ्यूचर्स का है तो ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है. ठीक है, क्रॉसओवर्स कैसे चल रहे हैं. ऑल द टेक्निकल पैरामीटर्स वी आर क्लबिंग टू अराइव एट मार्केट सेंटीमेंट. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये यूनिक है ऐप के अंदर. ठीक है, और चंदन ने भी आपको जो बताया कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग और इंट्राडे को यू कैन क्लब एंड सी अ कंबाइंड सेंटीमेंट. ओके, सो ये जो दो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे को है, ये तो मैंने भी ऐप में डालनी पाया, लेकिन बट व्हाट चंदन हैज सजेस्टेड, इफ यू क्लब इट देन यू कैन गिव अ बेटर सेंटीमेंट कि चलो ठीक है, मेरे को 3 दिन 2 दिन एक्सपायरी रिलेटेड अगर मेरे को सेंटीमेंट देखना हो तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. मल्टी स्किनर, उर्मिला, यू कैन गो टू द स्किनर सेक्शन. ओके, देयर इन द टॉप आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस प्लस 2 बॉक्स बने हुए, दिस मल्टी स्किनर्स थिंग. यू कैन गो इट देयर, क्लिक ऑन द क्रिएट मल्टी स्किनर. ओके, यू कैन क्रिएट एनी. ठीक है, तो एक 5 का लिमिट है, लेट मी डिलीट 1. ओके, सो इफ यू वंस यू क्रिएट यू हैव टू गो इनसाइड ऐड स्किनर्स. ठीक है, तो आपको जो भी स्किनर्स ऐड करना हो, तो मान लीजिए प्रीवियस डे हाई मैंने लिया. ठीक है, लेट्स टेक मूविंग एवरेज में मैंने 50 में 100 लिया. ठीक है, सिमिलरली मेरे को कुछ फंडामेंटल पैरामीटर ऐड करना हो तो गो टू द फंडामेंटल स्क्रीनर्स. ठीक है, इसमें से आपको कुछ भी ऐड करना हो, प्रोमोटर स्टेक इंक्रीज हो रहा है, सो दिस टाइप यू कैन ऐड टू द स्क्रीनर्स देन सी आउटपुट. अब मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर बहुत रैंडम ले लिए, आई डोंट नो कि इसमें स्कैम में कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा. सो लेट्स गो, नो. सो बहुत रैंडम मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं ऑलमोस्ट देयर देखूं तो अगर मैं देखूं पहला स्टॉक टीसीआई एक्सप्रेस, तो इसके अंदर दो पैरामीटर में आ रहा है, ये गैप अप भी हुआ है एंड इसके अंदर से होल्डिंग इंक्रीज भी हुआ है. ओके, सो इट्स नॉट कि नेसेसरी की परफेक्ट मैच ही, ऑलमोस्ट देयर भी अगर 2 स्टॉक में भी आ रहा है वो, तो यू कैन सी. अब एड्स के अंदर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि किस किस पैरामीटर पे आया. तो अगर देखोगे तो ये प्रोमोटर इंक्रीजिंग देयर स्टेक एंड प्राइस एवर प्रीवियस डे हाई. तो दिस स्टेप इसमें आप मल्टीपल स्कैन इस तरीके से देख सकते हो. मतलब आई होप ये आंसर योर क्वेश्चन. ऑप्शन सीखना है तो कैसे सीखें. सो ऑप्शंस का जैसे बताया कि अगर आप बिगिनर्स हो तो
we have provided some videos also, and at Motilal also available. We also have certification courses also. So Edemo Pro हम लोग का एक product है. You can join any certificate courses, or there are free courses also. You can go and join, and then you can learn about the option market. और हम लोग के अलावा हम लोग भी काफी ट्रेनिंग सेशन ऑप्शंस के ऊपर करते रहते हैं. जैसे टुडे आल्सो वी गाइड यू अबाउट द ऑप्शन चेन, OI चार्ट कैसे देखना होता है, मैक्स पेन और पुट कॉल टू हाउ टू एनालाइज. सो अमन, you can explore our Edemo section, and then you can help yourself. So Rajnikant Desai, like your queries ki, does this app provide individual stock weightage in respective index? So तो अभी हम लोग ने ये अभी डायरेक्टली हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया. सो अगेन वी विल वर्क ऑन दैट. सो HDFC का कितना स्टेक है, तो जनरल, तो obviously we are, if you can Google it, you can get it. But again, on the live basis, we'll work it out. स्पेशली निफ्टी के बेसिस, निफ्टी के अंदर या फ्यूचर्स में ऑब्वियसली कि अगर मार्केट में जैसे एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, जो अभी चंदन बता भी रहे थे कि ठीक है कि यार बैंक निफ्टी में 7 स्टॉक अप थे, 5 डाउन थे. अगर उसके अंदर HDFC अगर डाउन ज्यादा हो जाए, तो कितना भी नंबर ऑफ स्टॉक्स अप ज्यादा है, लेकिन अगर उसमें जो हाथी है वही अगर डाउन है, तो इट विल ड्रैग होल मार्केट डाउन. So we'll understand the importance, and we'll obviously try to give it to you, Rajnikant. Then some stock which so Saiki Ibrahim, the stock that we are sitting advising over there in 360 is similar to MOTGS advice. So Saiki, ये जो TGS जो हम लोग again जो previous हम लोग का Mozilla का प्रोडक्ट है, वो प्योरली टेक्निकल पैरामीटर्स पे बनता है. ओके, तो यहाँ जो स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, दिस वी आर यूजिंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल इन द बैक एंड, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे कॉल्स देते हैं शॉर्ट टर्म, इंटरडे, लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म जो रहता है अगेन फंडा पैरामीटर्स पे रहता है. शॉर्ट टर्म भी यू कैन से कि एक टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों क्लब करके होता है. लेकिन अगेन दिस टू प्लेटफॉर्म की TGS एक मशीन लर्निंग के थ्रू कॉल देता है. इट्स अ मशीन लर्निंग टूल. और ये दैट वी आर गिविंग इन द स्टॉक एमओ डिवाइस सेक्शन, ये बेसिकली ये हैंड पिक्ड. सो आवर एनालिस्ट टीम डूइंग दिस ट्रेनिंग इन द बैक एंड, देन दे आर फाइंडिंग इट आउट, देन दे आर सजेस्टिंग. सो इट कैन हैपन कि अगर कोई चीज मशीन के थ्रू भी आ रहा है और यहाँ भी आता सेम, दे कैन बी सेम. सो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि अगर मशीन भी बता रहा है कि स्टॉक अप है और आर एनालिस्ट आल्सो सेइंग इट्स अप है, सो इट्स अ गुड इंडिकेशन. So I think most of the all thing I've covered. Can we customize and create our own watch list using multiple parameters like fundamental, F&O build-up, etc. So customize create watch list, तो मैंने अब जैसे बताया कि आप multiple watch list create कर सकते हो. इसमें कोई डिबेट नहीं है. आप अलग-अलग watch list का अलग-अलग नेम भी दे सकते हो. So you can go to your watch list section. ठीक है. So बॉटम में आप देखोगे तो फ्लोटिंग मेनू है. देयर यू कैन क्लिक एंड क्रिएट वॉच लिस्ट. तो आपको जितने वॉच लिस्ट क्रिएट करने हैं यू कैन क्रिएट. जो जो स्टॉक आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे बेसिस पे करना हो, यू कैन क्रिएट योर ओन वॉच लिस्ट. सो अर्जित, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. Yeah, Saurav. So we have one attendee who has raised their hand. So we'll just take that question and then we can wind up. So we have one question from Riddhi Javeri. So Riddhi, I am unmuting your mic. Please go ahead and ask your question. Riddhi, your mic is unmuted. Do you want to ask any question or should we just proceed? No, sorry. It was just by mistake. The answer, it has been already answered. Okay. No worries. Yeah. All right. So I guess Saurav, there are just a few more questions. If you can take those and then we can wind up. So Urmila is done. Say no stock are showing intraday filter or in option or only sell options. So say Ibrahim, basically आपका मेरे को समझ नहीं आया. No stock are showing in intraday filter. So
किस जगह बेसिकली आप बात करो? So can you speak, like you can raise your hand and Harjinder will I allow will, you. I will unmute him. Yes. इब्राहिम जी आपका माइक अनम्यूट है. Yeah, You can hi ask sir. question. आपको गुड मॉर्निंग. Good morning, you say. Good Yeah, बताइए. afternoon. सर ये मैं जब फिल्टर्स में जाके चेक कर रहा हूँ तो मतलब उसमें 360 में सर किस तो जो सेक्शन में हो आप? एक सेकंड था 360 एमओ एडवाइस में. Okay. एमओ एडवाइस में स्टॉक आइडियाज है ना, वहाँ पे नीचे ऑल में मैं फिल्टर में इंट्राडे लगा रहा हूँ. सर इंटरडे का तो कॉल सब हम लोग ईओडी क्लोज कर देते हैं, तो फ्राइडे 3:30 के बाद सारे क्लोज कॉल से पहले क्लोज हो जाते हैं. तो ओके, आपको नहीं मैं मंडे. फ्राइडे को भी चेक, फ्राइडे या मतलब वर्किंग डे में भी चेक किया तो उधर तो कुछ नहीं था. सर देखिए, जैसे यहाँ पे ओपन कॉल है ना, आप वहाँ पे क्लिक जी. करो, ये क्लोज कॉल दिख जाएंगे. ठीक है. हाँ ओके जी अब जी. देखिए ये सारे 20 तारीख के कॉल है जो हमने जनरेट किया तो क्लोज हुए थे. ओके सर, ठीक है, ओके सर, तो ठीक यहाँ है. मिल जाएगा आपको. फाइन फाइन, ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू. Okay. So anybody, I think one more query was there, no? Aman. Okay. So thank you, Aman, for your appreciation. So obviously, we also like कि अमन आप थोड़ा सा हम लोग प्ले स्टोर पे भी आप थोड़ा सा हम लोग को रेट करो. So we also get motivated. And कोई suggestions हो तो मैंने बताया ऐप के अंदर फीडबैक सेक्शन भी है. You can also write some suggestion on the on your our Twitter channel, our Facebook channel also, and you can share some of your, जैसे चंदन ने अपने बताया कि व्हाट चंदन लुक्स इन द ऐप. तो अगर आपको ऐप में कोई पर्टिकुलर फीचर अच्छा लगा, यू कैन शेयर ऑन सोशल मीडिया और यू कैन पोस्ट ऑन फेसबुक. सो थैंक यू अमन. वन मोर क्वेरी, स्टॉक ऑफ ऑप्शन ग्राफ. सो यस, तो स्टॉक्स के ऑप्शंस पे हम लोगों ने ग्राफ अभी नहीं डाला है. अभी फ्यूचर्स का भी चार्ट हम लोग नहीं डाला है. सो वी वर्किंग ऑन इट. तो स्टॉक्स के फ्यूचर्स के भी चार्ट एंड ऑप्शंस के भी हम लोग डाल देंगे. सो करंटली जो मैंने बताया कि अभी देयर आर वेरियस फीचर दैट वी आर वर्किंग ऑन. सो ऑलरेडी 1 month 1.5 month का ऑलरेडी पाइपलाइन है, एंड पोस्ट दैट विल आल्सो वर्क आउट ऑन दिस पार्ट. सो फर्स्ट आवर target is to provide this platform web. So post that Narendra, we'll work on this option chart also. Thank you. So I think Saurabh, we've answered pretty much all the questions that we have. In case you guys have any more questions, you can always write to us, and we will get back to you. Also, we will be sharing this. A lot of you guys have requested if we can share the recording of this meeting. We will share it with all of you on email. Alternatively, you can also visit our social media handles. You can visit our YouTube channel, and we will upload this entire recording on YouTube as well. So you can easily access it over there. So Harjinder, one more query I like to take. Maria has mentioned should we shift from MO Trader Investor app to this app. So Maria, ये trading app नहीं है. This only for research purpose. So आपको अगर ट्रेड करना है, एग्जीक्यूट करना है, यू हैव टू यूज आवर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऐप इटसेल्फ. ओके, ये हम लोग ने जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस है. सो और इसका ही पर्पस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट में ऑब्वियसली दे आर वेरियस प्लेटफॉर्म. वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर ओनली प्लेयर इन द मार्केट. ओके, हम लोग ऐसा क्लेम भी नहीं करते. वी आर जस्ट सेइंग कि दे आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म. सो अगर मार्केट में आपको अगर फ्यूचर्स रिलेटेड कुछ समझना हो, कुछ लर्न करना हो, आपको पर्टिकुलर ग्रीक्स देखना हो, तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा. कॉल्स देखने हो, रिसर्च रिपोर्ट देखने हो, तो मार्केट में कोई सिंगल ऐप नहीं. व्हाट वी आर सेइंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे हम लोग के रिसर्च कॉल जो हम एनालिस्ट करते हैं, हैंड पिक कॉल्स, मशीन जैसे एक टीजीएस से हम लोगों ने बताया, टीजीएस इज अगेन अ प्रोडक्ट दैट वी हैव, जहाँ पे मशीन के थ्रू वी आर, मशीन लर्निंग के थ्रू वी आर प्रोवाइडिंग अ कॉल्स. ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक, हर स्टॉक का रेटिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग. फीचर्स और ऑप्शंस के लिए अगेन वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द टूल्स. तो ये ऐप बेसिकली पर्पस इज दैट कि यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड मोतीलाल ओसवाल, व्हाट मोतीलाल ओसवाल ग्रुप एज इज प्रोवाइडिंग. सो हमारी ट्रेडिंग ऐप, हमारी रिसर्च टीम, हमारा रिसर्च है. ओके, सो हम लोग ने एक होल यूनिवर्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट ओवर, कि वी क्रिएट अ यूनिवर्स. ओके, इस यूनिवर्स के बियॉन्ड यू डोंट नीड टू गो एनीथिंग. ठीक है, हमारे जो एनालिस्ट है जैसे चंदन है, वी आर गो टू द टीवी आल्सो, वी आर ऑन सीएनबीसी आप जाओगे, देन अगेन वी आल्सो प्रेजेंट देयर. ओके, हम लोग के एनुअल रिपोर्ट्स भी आते हैं. So overall, our purpose is to create a whole bouquet in through Motilal Oswal apps itself. Okay. Okay, Rajinder, I think we are done, and all the queries are also like done. Answer from my side. Yes, Saurabh, I think we are done with all the queries. I think we can wind up this session now.
So, okay, thank you, friends. Thanks, Chandan, for your insight also. And thanks, Rajendra, for organizing such a wonderful session. Thank you. Thank you all of us. Thank you, Saurabh and entire team, and all the participants. Have a great time. Request everyone to use this beautiful app, which is the effort of deep research. And I think if you have to be into the research part, if you have to make the consistency in the market, such kind of app are the only solutions. We are personally using it, and earlier we used to put so much effort, but now because of all such apps, things are getting smoother and easier. So you must get the benefit out of it. And as Saurabh said, give the feedback to the rating, and whatever the support you need, we are here to support you well. Apart from that, whatever the questions you have, even during the market hours, even after the market hours, you can text us in feedback, and also you can tweet us. Most of you are following me on the social media. So my Twitter handle is Tapadia Chandan. You can text if anything related to the Research 360, and you can also take M capital O Research 360, M capital and R capital, MO Research 360 Twitter handle. So just get in touch with us. We will try to give our best. And that's all. Thanks for connecting with us. Enjoy. Happy weekend. Happy weekend, guys. Thank you, Chandan. Thank you, Bye. everyone. Happy weekend. Bye-bye.